Assalamu alaikum. Today we have fourth lecture for business finance. The topic we are going to discuss today is time value of money, which is your second chapter. Let's have a brief introduction and a review of the last lecture we have. That's about financial markets. What we studied about financial market is what is a market. That is a place where goods and services are buying and selling of goods and services is done. Secondly, we had a look on financial institutions and the financial intermediary and the process of the financial intermediaries. There were types of financial markets. We look at the six different sets of financial markets. The first one was physical asset market and financial asset market. Physical asset market was basically deal with the physical assets, all the physical assets. For example, your chair, your table, your cell phone, your laptop, anything that is physically present, and buying and selling of all those physical assets is done in a physical asset market. Then we studied about the financial asset market. Our financial assets include our bonds, our stock, our marketable securities, and many other financial assets. All the buying and selling of all these financial assets and the transactions of all these financial assets is done in a financial asset market. We also said that a financial market or a financial asset market basically will include all other markets as well. For example, including the capital market, including the public and private market. All these markets will be interrelated. Their role will be interrelated, and they will be focusing or maybe merging in one single market. Then we studied about the public and capital market versus the money market. Money market was about the short-term, highly liquid assets. For any assets, for example, our treasury bills, all these assets plus the other government securities, short-term securities with the short-term time period, plus securities with liquidation, highly liquid, which are easily convertible to cash. All these securities are included, and they are traded, or their transaction and their exchange is done in a money market. Then we studied about the capital market. Capital market basically is for long-term securities with a time period of long-term time frame. And they basically include your secondary market as well, your primary market, and many other markets are included in your capital market. Then we studied about the primary market and the secondary market. The primary market basically includes the issuance of new shares, and it helps in raising new capital. Whenever we have to raise our new capital, we will be making all the transactions in primary market. Primary market includes two important type of transactions. The first one is initial public offering, and another one is second public offering. Initial public offering means in first time issuing the shares. The new company issuing the shares for the very first time is initial public offering, and issuing those shares for issuing new shares for the second time into the market to the general public would be second public offering. And similarly, it would go on to the number of public market. As the number of public offering would increase, the number from second public offering to third and fourth and fifth to public offering, and so on. Then we studied about the secondary market. Secondary market, basically the best example of secondary market is stock market, a market for already existing and outstanding shares. So all those shares which are already being issued and they are being traded or exchanged within a market, that would be in the secondary market, and most of the time it is being done in a stock market. In Pakistan we have Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange, and Islamabad Stock Exchange, and these are the examples of your secondary market in Pakistan. Then we studied about primary versus secondary. Then we studied after primary and versus secondary market, we studied about spot versus future market. Spot market is market for goods or services, or the exchange or transactions of goods or other products and services on the spot. For example, if I want to buy something that has a spot price of rupees 10,
and if I ask the person to sell that product at rupees 10, that would be your spot price at that time, so that would be a spot time. And spot delivery, on the time delivery, on the time transaction, and the price would be the spot price. Similarly, if I want to buy something and I do a contract with the seller that I'll buy this product after 6 months. After 6 months is a time period of future time period. That means I'm going into a future contract to buy that product at future point in time. The delivery will be in future, but the price will be predetermined. Predetermined price, predetermined date, delivery date, and predetermined quantity. All these three things will be predetermined, but only the delivery will be at the future point in time. That actually basically helps in hedging and removing the risk of increase or decrease in the prices. Then we studied about the public versus private market. The public market basically include a formal contract and is liquid contract. Basically it is easily to convert into cash, but the private market is the one which includes informal contract. It does not legally bound the person, or does not legally bound the person or force the person to include into a contract, or to buy or sell on the terms, on the set terms and conditions. But it has pros and cons, and one of the disadvantages, it is not very liquid. It is not a very liquid market, and the contracts we are going into these private market are not very liquid. We are going to buy something from our friend, but the surety is not there. But plus we are not very sure that we are going to purchase one thing and we are going to sell it in the same price. So the liquidity is, and very easily, and on the time, at the time when we need the money. So the liquidity is not sure. This was about the types of financial markets. Then we studied the type of capital transfer. There was another type of market, mortgage versus consumer credit, that was totally related to the banks. Then we studied about the types of capital transfer. There were 3 types of capital transfer. The first one was direct capital transfer. That means transferring your capital directly from the savers to the end users, or to the those who need money. They are usually your borrowers. So savers directly transfer their amount or their funds to the borrowers, and borrowers directly, who are the firms who need money, they give their securities to the savers. Then we have indirect transfer through financial investment bank. That investment bank basically help the companies as well as the savers, and they work as a financial intermediary. What they do is they take some amount of funds from the savers and give those funds to the firms, who have in return give them the securities. Those securities are then in return given to the savers by the investment banker. Investment banker help the companies or the firms to in advising them how to issue the securities, help them to issue the securities, distribute their issues, plus they also help them in underwriting those issues. They also enhance their credibility. This is the role of the investment banker. Then we have third form of transfer, that is the transfer through financial intermediary. What financial intermediary do is, financial intermediary get funds from the savers and then give those savers their own intermediaries securities. That is mostly in the form of units. They give their own securities to the savers and get funds from them. Then they invest those funds into the firms and into the securities of the firms, and give those money to the firms, which are basically the borrowers who need money, and then get their securities. When they get profit from the investment in the securities, they give half of that profit, or the certain percentage, whatever they have decided for their savers, they give that percentage to their savers, and the remaining percentage is their profit. And this is how the insurance companies, the banks, who go for fixed deposit and loans and deposits, and who give certificates of deposits, banks. And then we have life insurance companies, pension funds, mutual funds. All these companies are the financial intermediaries, and they follow the same process as I have discussed in the last, transfer of capital from indirect transfer of capital from saver to the borrower through financial intermediary.
And I have already discussed the types of financial intermediaries that include the mutual fund, pension funds and many others, and I did ask you to search on the types of financial intermediaries and studied in detail what are these intermediaries, and we'll be having an assignment on that. Now let's look at today's lecture, that is about time value of money, and this is one of the important topic and chapter. Time value of money, what we are going to study in time value of money is, the first thing is the interest rate. What is the interest rate and how we are going to deal with it, and how the time deal with the interest rate. Then we will be studying the simple interest rate, how the simple interest rate will be affecting your savings, your money, how you will be getting money in future, how you will be getting money today, and what will be the value of money today. Then we will be studying compound interest. That compound interest would be, compound interest is basically how your interest is compounded over the years, the number of years, and we'll be needing number of years, the interest rate, and how it would be compounding over the years. Once we get the interest after 1 year, and then how we are going to compound that interest over 2 years or 5 years. Then we have annuity. Annuity is basically one of the concepts from mathematics, and you might have studied that before, but we'll be studying it from the finance point of view. Then different types of annuities are there, and we'll be studying uneven cash flows, that once we have uneven cash flows or inflows and outflows in the deposit or in our investment, or whatever we are doing in the finance with our funds, how we are going to manage that. Then at the last we'll be having amortized loan, that will be loan amortization process and loan amortization table schedule. We'll be studying in detail how the banks give their loans and how they amortize their loans. These are the topics we are going to cover in time value of money. Then we'll have the interest rate. Let's look at the topic of time value of money in detail. The interest rate. Now if I ask you, what would you prefer, rupees 10,000 today or rupees 10,000 in 5 years? What would be your preference? Of course your preference would be rupees 10,000 today. Why? Because you don't know about your future. You don't know how you are going to be in future and what would be the worth of rupees 10,000 in future. So what you will do, you will be preferring rupees 10,000 today. That also means, let's suppose जो पैसों की वैल्यू या जो चीज़ आज है, आज मेरे 10 रुपए की जो वैल्यू है वो अगर मैं 5 साल बाद देखूँ वो नहीं होगी. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस टाइम, तो उसमें प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ है, हमारे पहले भी पेरेंट्स कहते थे और उसमें भी यही कि हमें जी 1 रुपए में इतनी चीजें मिल जाया करती होती थी. 1 रुपए में हम कितना आटा ले आया करते होते थे. 10 रुपए का हमारा इतना आटा, आजकल तो 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है. एज टाइम has increased, तो टाइम के साथ साथ आपकी पैसों की और आपकी चीज़ों की वैल्यू चेंज हो गई है. Let's suppose if I used to buy a pen for ballpoint for rupees 10 for rupees 2, then it turned out to be rupees 5 per pen, and nowadays it would be rupees 10 or 12 rupees. वही पेन जो मुझे 2 रुपए का या 5 रुपए का मिलता था, आज वो पेन मुझे 10 या 12 रुपए का मिलता है. तो दिस इज द चेंज इन द वैल्यू फॉर मनी, कि आपकी जो पहले वैल्यू थी पैसों की वो आज वैल्यू नहीं है. सिमिलरली अब ये सब कुछ होता क्यों है? इन सब का रीजन ये है कि आपकी इन्फ्लेशन होती है, आपके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आती हैं, आपकी इकोनॉमी में चेंज आता है. वो सब चीजें जो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही होती हैं, ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, आपकी पॉलिटिकल डिसीजंस अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी इकोनॉमी की जो कंडीशन होती है, प्लस आपके कंट्री और आपकी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज की इकोनॉमी में क्या कंडीशन है. इन सब चीज़ों को मिलाकर और इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद इन्फ्लेशन वगैरह देख के फिर ये देखा जाता है कि पैसों की वर्थ कितनी ज़्यादा है, इंक्रीज ज़्यादा या कम हो रही है. विद इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली पैसों की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में बेसिकली अगर रियल टर्म्स में देखें, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही होती है पैसों की वैल्यू कम हो रही होती है आपकी. आप जिस तरह से अगर वो इन्फ्लेशन रेट जो कि 10 साल पहले देखा जाए और वो इन्फ्लेशन रेट जो आज है वो दैट इज टोटली चेंज्ड. टोटल चेंज्ड इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, प्लस टोटली चेंज आपकी वैल्यू ऑफ मनी है. पहले हमें अगर 10 रुपए में 8 चीजें मिलती थी तो आज 10 रुपए में सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं. दिस इज चेंज इन योर वैल्यू ऑफ मनी. ये तो बेसिकली हमें ये डिस्क्राइब करता है कि क्या पैसों की वर्थ क्या है आज कल और किस वजह से चेंज होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ योर चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट एंड द चेंज इन द इकोनॉमी. सो
you already recognize there is a value of time, value of money at different points in time. So this is how you go for time value of money and its concept and interest rate. Let's look at what time value of money is. Why is time such an important element in your decision? ऐसा क्या है कि टाइम को क्यों कंसिडर किया जाता है? उसका रीजन यही है कि हमें नहीं पता कि आज प्रेजेंट में मैं हूँ, मेरे पास 10 रुपए हैं, मुझे नहीं पता कि अगले मिनट 4-10 मिनट बाद इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, महीने बाद इसकी कितनी वैल्यू होगी, 6 साल बाद उसकी क्या वैल्यू चेंज होगी। इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि जो आज मेरे पास वर्थ आ रही है, आज चीज है, मैं उसको देखूं। प्रेजेंट को हम देखते हैं, हम फ्यूचर को भी कंसिडर करते हैं, एंड वी कंसिडर इट ऑन द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट। क्या एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी कितनी फ्लक्चुएट करेगी, इकोनॉमी में कितना चेंज आएगा, कितना ज्यादा पॉजिटिव चेंज है, कितना ज्यादा नेगेटिव चेंज है। ये सब चेंज जो है वो पैसों की वैल्यू के ऊपर कितना ज्यादा अफेक्ट कर होगा, आपके इंटरेस्ट रेट को कितना अफेक्ट कर होगा, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्या इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो लास्ट टाइम आए थे 2008 में, अगर हम उनकी बात करें तो वो जो 2008 से 10 और आगे चलते गया हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसका ग्लोबली एक बहुत इफेक्ट आया है। प्लस इफ यू लुक इनटू द यूएस, तो यूएस में भी आपकी बहुत सारी वैल्यूज में चेंज आई है। आपके उनके इन्फ्लेशन, दो इट्स बैलेंस्ड इकोनॉमी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर लिया, पर उनके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के विद टाइम चेंजेस आए हैं उनके इंटरेस्ट रेट में। क्यों? बिकॉज आपकी इकोनॉमी चेंज हो रही होती है, आपकी कंडीशन चेंज हो रही होती है, कभी डेवलपमेंट में और कभी अंडर डेवलपमेंट में जा रही होती है, और अकॉर्डिंगली आपके कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहे होते हैं आपके इंटरेस्ट रेट और आपकी वर्थ ऑफ मनी में। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई इज टाइम वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इन योर डिसीजन। सो ये तो आपको समझ आ गई कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट चेंज होता है अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होती है। नाउ व्हेन वी डिफाइन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द वर्थ और वैल्यू ऑफ मनी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। दैट मीन्स कि किसी भी टाइम पे आपके पैसों की वैल्यू या उनकी वर्थ जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड के। तो जिस टाइम पे डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे डिफरेंट वैल्यू होती है आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिफरेंट एक सिंपलेस्ट वे में डिफाइन ये करते हैं, द वर्थ और द वैल्यू ऑफ मनी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन time. So this is the simplest definition of time value of money. Now if you look at the simple interest is defined as interest paid or earned on only the original amount or the principal amount. So कोई भी आपने original amount deposit की है या आपने इन्वेस्टमेंट की है, या अगर आपने इवन किसी को इंटरेस्ट पे करना है, अगर आप पे करते हो या अर्न करते हो, दोनों, इन्वेस्टमेंट की है तो अर्न कर रहे हो, अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आप पे कर रहे होते हो। अब दोनों केसेस में इंटरेस्ट अर्न करना है या पे करना है, दैट इज द अमाउंट कि आप ओरिजिनल अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि सिंपल ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल प्रिंसिपल जो अमाउंट होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होता है, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट rate. Now when we talk about the compound interest is interest paid or earned on any previous interest earned. Let's suppose if I had suppose इस तरह से कर लेते हैं, I had 10% interest rate at 0.0. This is 0.1. This is 0.2. This is 0 means it is your year 0. This 1 means this is your year 1. This 2 means this is your year 2. Now let's suppose I have an interest rate of 10%, जो कि मैं अगर एक साल के बाद जब मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करती हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज ईयर 0 पे मेरे पास 100 रुपीज था। इस 100 रुपीज के ऊपर जब 10% लगा, तो 100 का 10% is 10, so that would make 110 rupees. Now this 110 का क्या मतलब है कि 100 के ऊपर 10% लगा और एक साल बाद मुझे 110 रुपीज मिले। This is your simple interest rate. Now if I say कि इसी 110 के ऊपर अब दोबारा अगले साल जो मैं इंटरेस्ट, वो भी 10% चल रहा है जी, अगले साल भी मेरे पास जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज 10%। तो वो 10% पे जो आपके 100 आएगा प्लस आपके 10 जो कि आपने 10% लगाया, दैट इज 110। ठीक है, ये एक सिंपल इंटरेस्ट रेट है जो कि आपके ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया या आप लोन ले रहे हो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है। आपने पे करना है या आपने अर्न करना है तो उसके ऊपर लग रहा होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि वो ओवर द ईयर्स, दैट मीन्स 1, 2, 3 जितने भी कमिंग अप ईयर्स हैं उन सब के लिए जो प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट रेट होता है प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। नाउ कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर हमारे पास
इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो अमाउंट आई थी इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अर्न करने के बाद, दैट वाज 110 रुपीज। इस 110% के ऊपर हम 10% लगाएंगे और फिर हम लोग ये देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दैट वुड बी 121, ठीक है, जो भी अमाउंट आती है 10% ऑफ 110, और उसकी फाइंड आउट करके हम ये देखेंगे कि सेकेंड ईयर पे हमारे 110 के ऊपर हमारा 10% लगेगा। Now let's look at this thing, how simple interest work and what we would need in finding out the simple interest value, whether it is a present value or a future value. Now what we require in that simple interest is a simple interest amount, and then we will be needing deposit today, what we deposit today, that would be the amount. Then we will be needing interest rate per period, what would be the interest rate per period, per year, on annual year basis or semi-annually basis, whatever it is. Then we need a number of years or the number of time periods. Number of years or number of time periods, that all depends. Now there are two different types of values we have to find in simple interest rate, and that is your present value and the future value. Now let's look at the future value, what it is and how we are going to find out future value for our deposited amount or any investment we have to make. The future in simplest form, future value is the value of money or worth of money at some future point in time. So future time of a present value amount of money, या present value of or present amount of money. तो किसी भी चीज की अगर हमने future value find out करनी है तो we would say that it's a future value or the worth of money at some future point in time. तो किसी भी फ्यूचर में उसका टाइम देख लेते हैं हम। अगर मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स हो गई, या आपकी जितनी भी टोटल अमाउंट आपने आज डिपॉजिट किया, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज ये कर लेते हैं कि मैंने आज ₹1000 इन्वेस्ट किया। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो मैंने ₹1000 इन्वेस्ट किया है ये 3 साल बाद कितना बन जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट अर्न हो रहा है, तो मैं अगर कहीं पे डिपॉजिट करती हूँ ₹1000 जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट 10% मिल रहा है, तो उस 10% 3 साल तक जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, 3 साल तक वो इंटरेस्ट रेट अर्न होगा, और उस इंटरेस्ट रेट के 3 साल के बाद मुझे पता चल जाएगा कि 1000 की वैल्यू क्या है। नाउ हाउ टू फाइंड दैट वैल्यू, वी वुड बी नीडिंग अ फॉर्मूला एंड सम few of the tables. Let's see how we are going to find out that. Let's look at this, the process of going from today's value to the future value or the values is called compounding. तो वो जो प्रोसेस है कि आप आज की वैल्यू से मूव करते हो, आज की 1000 जो मैंने आज इन्वेस्ट किया, उस 1000 की वैल्यू जब मैं फ्यूचर में फाइंड आउट करना चाहूंगी तो फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी। वो जो 1000 की वैल्यू से मूव कर रही हूँ फ्यूचर की वैल्यू, टुडे 1000 की वैल्यू से फ्यूचर की किसी वैल्यू में विद एन इंटरेस्ट रेट अर्न, तो जो अमाउंट मेरे पास आएगी या जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी, दैट वुड बी योर फ्यूचर वैल्यू। तो जो प्रोसेस है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टुडेज वैल्यू टू द फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। नाउ लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला। वी हैव दिस फ्यूचर वैल्यू. This is the formula for future value. Future value is equals to present value 1 plus I power n, where this future value, FV means future value, we have PV means present value, I means interest rate, and n means number of years or the number of years over the period जो हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. Now let's look at this thing, how we are going to find out the future value. Now let's take an example. जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ, let's suppose, assume that you deposit ₹1000 in an account earning 7% interest for 2 years. What is the accumulated interest rate at the end of the second year? That means कि मैं अगर ये assume करूँ कि मैंने आज ₹1000 जो है वो डिपॉजिट किया एक बैंक में, ऐसे बैंक में जो कि मुझे 7% इंटरेस्ट देगा फॉर द नेक्स्ट 2 years, तो मैंने 2 साल के लिए ₹1000 डिपॉजिट कर दिया। 2 साल के अंदर मुझे जो इंटरेस्ट रेट अर्न होगा 7% एक साल, 7% दूसरे साल। तो फिर हम आगे ये देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू बनेगी, फ्यूचर में वो मुझे क्या दे रहा होगा। व्हाट वुड बी इट्स फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, या सेकंड ईयर के बाद या फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ लेट्स सपोज हम इसको जो क्वेश्चन करने का सिंपलेस्ट और आसान तरीके, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप टाइमलाइन बनाओ। जब आप टाइमलाइन बनाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपने लेना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स लोगे, क्या आपकी वैल्यू और किस ईयर पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। सेकेंड स्टेप is writing your formula and then solving it is your third step. The first step, let's look at the timeline of the question I have already given you. That is, will deposit ₹1000 today
in a bank that offers 7% interest rate and 2 years for the 2 years. Now if we look at this thing, rupees 1000, that means this rupees 1000 is the amount we are going to deposit today. जब मैं आज की बात करती हूँ कि मैंने आज कोई पैसे डिपॉजिट करने, that means present. आज means present. मैं आज डिपॉजिट कर रही हूँ अमाउंट, today present. present में मैं जो वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, जो चीज भी डिपॉजिट कर रही हूँ, तो that means it's a present value. आज की वैल्यू है. So this 1000 would be your present value. Now in an account earning 7% simple interest rate, now if we look at the 7%, this is your I. So this would be your I interest rate. For 2 years, this 2 would be your number of years. This is your N. What is the accumulated interest rate at the end of the second year? That means कि हमें 2 साल के बाद वैल्यू फाइंड आउट करनी है. After 2 years, हम after 2 years जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या at the end of the second year फाइंड आउट करेंगे, that automatically means कि आपने future value फाइंड आउट करनी है. We have present value 1000, we have interest rate 7%, we have number of years 2. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी. जब हम ये बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बाद की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें फ्यूचर फाइंड आउट करना है. द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस I पावर n. Okay, now what we are going to follow is different steps. The step 1 I have already told you is making a timeline. Let's make a timeline. As we are talking about 2 years, that means this is a year 0, this is year 1, this is year 2, and this is year 3. At year 0, whenever we are talking about 0, जब भी आगे फाइनेंस में किसी भी जगह पे मैं आपसे ये बात करूंगी कि हम 0 point in time, तो 0 point in time means today, आज की क्या वैल्यू है. तो आज क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे पास 1000 रुपीज है एंड वी आर गोइंग टू डिपॉजिट दैट 1000 रुपीज इन अ बैंक, दैट वुड बी पेइंग योर 7% इंटरेस्ट रेट. ये 7% इंटरेस्ट रेट होगा फॉर द नेक्स्ट 2 years. नाउ लुक एट दिस थिंग कि वी आर गोइंग टू हैव टू फाइंड दिस 1 year एंड देन द फॉर द सेकेंड ईयर, दिस इज योर year 1 एंड year 2. और इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस जगह पे हमें फ्यूचर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आपकी टाइमलाइन है. दिस इज योर स्टेप 1, year 0, 1, 2, and then we have 1000 rupees to be deposit today. We have 7% interest rate. After 2 years, we will be finding the future value. Now let's put the values here. We have future value is equals to 1000 into 1 plus 0.07. We are putting the value, present value हमें पता है हमारे पास 1000 है. इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले से डिफाइन की है. दिस इज योर इंटरेस्ट वैल्यू, दिस इज 7%. So you will be adding 0.07% instead of I. And for n, number of years आपके कितने हैं? 2. Do this question with me so that it will be easy for you. साथ साथ क्वेश्चन लिखें, साथ साथ अपने फॉर्मूलाज लिखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं. इससे हेल्प आउट ये होता है कि उसी वक्त की हुई चीज साथ साथ की हुई चीज आपको याद रहती है और इससे प्रैक्टिस भी होती रहती है. Now what would be the value of this would be 1144.9 rupees. This is the future value for the second year. That means कि अगर मैं at the end, अगर मैं 2 साल के लिए, that means if I deposit 1000 rupees for 2 years at a interest rate of 7%, अगर 7% इंटरेस्ट रेट के साथ 1000 रुपीज डिपॉजिट करूं 2 साल के लिए, तो मुझे क्या 2 साल के बाद क्या वैल्यू मिलेगी? दैट इज 1144.9 रुपीज. नाउ राइटिंग दिस रुपीज, ये जो रुपीज का मैंने साइन साथ डाला है, दिस इज योर यूनिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट डाउन. इससे ये फायदा होता है कि आप लोगों को पता होता है कि क्या यूनिट आप यूज कर रहे हो और किस यूनिट में आप अपनी वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहे हो, और इसके मार्क्स भी होते हैं. सो जस्ट राइट इट डाउन कि आपके क्या यूनिट आप यूज करोगे. नाउ द वैल्यू वी फाउंड इज 1000 जो है वो 2 साल के बाद 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या बन जाएगा? 1144.9 रुपीज. नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट. What you deposited was 1000 rupees. So look at this thing. We have 1000 rupees
and we are going to deposit that amount at an interest rate of 7% for the next 2 years. तो ये year 1 and then we have year 2. ये 2 साल के लिए हम वैल्यू करके यहाँ पे सेकेंड ईयर पे हम क्या फाइंड आउट करें, फ्यूचर वैल्यू. तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years हम करेंगे. दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और द टाइम वैल्यू, अ टाइम लाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक. दिस विल हेल्प यू to understand or to find out this question very easily, or to solve this question very easily. Now let's look at this was all about the simple interest rate. Now let's look at how we are going to deal with the compound interest rate. जब हम ये कहते हैं कि 2 साल तक के वैल्यू हमने फाइंड आउट किए, 4 साल बाद वैल्यू किया, एंड वी आर यूजिंग अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट, तो वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है. अगर हम अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो इस ग्राफ के ऊपर अब ये देखें कि y एक्सिस के ऊपर हमारा वी हैव फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन US डॉलर्स. Then on x axis we have a number of years. We have first year, 10th year, 20th year and 30th year. If you look at these bars, so we have for yellow क्या represent कर रहे हैं, 10% compounded interest. 7% compounded interest is represented by blue and maroon represents the 10% simple interest rate. अगर आप ये देखें कि फर्स्ट ईयर पे कितना इंटरेस्ट अर्न किया था, ये सिंपल आपको ये बता रहा है कि अगर $1,000 या $1,000 इन्वेस्ट किए जाए या डिपॉजिट कराए जाए तो विद टाइम उसकी वैल्यू किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज होती है. दिस मैरून एंड ब्लू एंड येलो. फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो ये आपकी क्या प्रेजेंट कर रहा है, आपका 10% इंटरेस्ट पे मैरून था. सिमिलरली 7. अब वो 1 ईयर में अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी कितना था, इतना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ थोड़ा इंक्रीज हुआ है विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, 7% एंड 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट. सो मैरून अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट रेट विद टाइम ओवर द इयर्स, फर्स्ट ईयर, देन उसके बाद ये हमारा 10th ईयर है, 20th ईयर है एंड 30th ईयर. इसमें जो चेंज आता है बहुत स्लाइट सा चेंज आता है. बट इफ वी टेक कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट तो उसमें भी आप ये देखें 7 एंड 10 को देखें, ब्लू एंड येलो, दिस ब्लू एंड दिस येलो इज इंक्रीजिंग विद टाइम. जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, और अगर आपने पे करना है तो सिमिलरली जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा यू हैव टू पे दैट. तो अगर आप इस ग्राफ को खुद अपने लिए बनाएं कि मैं अगर आपको दूं कि 10% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, 8% आपके पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट है और 12% कंपाउंडेड इंटरेस्ट है. अब इसमें आप देखेंगे जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो विद टाइम आप ऑटोमेटिकली 1000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएं, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें कि 1000 था, 1000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट किया जाता है कि जो मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है कि 1000 वैल्यू के ऊपर आप फाइंड आउट करते हो एक अपना इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, जो हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 1 ईयर के लिए. सिमिलरली उसी 1 ईयर के लिए आप 7%, अब फिर 10th ईयर के लिए, फिर 20th ईयर के लिए, फिर 30th ईयर के लिए. अगर आप 30th ईयर पे देखें तो यहाँ पे जो आपकी कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज्ड है. दिस येलो वैल्यू, दिस ब्लू वन, इसकी वैल्यू और इस मैरून वाली की वैल्यू, इन तीनों को कंपेयर करें. अगर आप 1000 के ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लगाएं विद डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स, पहले आप लगाएं 1000 रुपीज के ऊपर 8% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 12% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. देन आप लगाएं जी 1000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर, फिर 20 ईयर, फिर 30 ईयर, और फिर उनका ग्राफ बनाए, उनकी जो वैल्यूज है उनके ग्राफ बनाए, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट होता है और कंपाउंडेड होता है तो वो उतनी ज्यादा आपको वैल्यू अर्न करके देते हैं या उतनी ज्यादा वैल्यू आपने पे करनी होती है. दिस इज द फैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो कि हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि किस तरह से आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता है. तो ओवर द ईयर्स आप देखें तो उसकी वैल्यू वर्थ चेंज होगी अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट अर्न करना हो, और अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू में चेंज या उसकी वर्थ में चेंज आता है. नाउ लेट्स लुक एट दिस फ्यूचर वैल्यू. सिंगल डिपॉजिट फॉर्मूला जो है उसको किस तरीके से किया गया. अगर आप ये देखें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻1. अगर फर्स्ट ईयर के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमने 1000 इन्वेस्ट किया 7% इंटरेस्ट के लिए, तो दिस इज 1000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.07. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1070. इस 1070 का क्या मतलब है कि हमने 70% एक्स्ट्रा अर्न किया अपने 1000 के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर. तो वो जो 70 आपका इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है, दिस इज योर एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव टू पे, और यू हैव टू, क्योंकि हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग अर्न कर रहे हैं, तो हम 70 रुपीज, इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा अर्न किया.
ओके, दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल बी अर्निंग एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। जब आप सिंपल इंटरेस्ट रेट की बात करती हो तो आप कहते हो कि जी 1000 के ऊपर हमने 7% लगाया तो आपके पास 70 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिले, दैट इज 1070। अब ये देख लेते हैं कि फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट तो आपने देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट रेट आपका 70% अर्न करता है, लेकिन अगर मैं इसी को कंपाउंडेड करूं तो वो कंपाउंडेड में किस तरीके से चेंज होगा। यू लुक एट दिस फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई पावर 1। 1000 के ऊपर हमने एक साल के अंदर अगर 7% इंटरेस्ट लगाया तो विल बी अर्निंग 1070, दैट 70% इज एक्स्ट्रा। नाउ अगर हम इस प्रेजेंट वैल्यू के अंदर को ये देखें कि एक साल और फिर दूसरे साल उसी वैल्यू के ऊपर इंक्रीज आएगा। कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यही है कि फर्स्ट ईयर आपने 1070 अर्न किया, जब आप इसी 1070 के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगाएं, 7% इंटरेस्ट दोबारा लगाएं, तो 1070 इंटू 1.07 करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये देखें, अगर आप, हमारे पास आया था 1070 फॉर ईयर 1। जब हम ईयर 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं इसी वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करूं, ईयर 2 के ऊपर 1000 ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर फाइंड आउट करूं तो वो तुम्हारा 70 अर्न करता है। तो कितना मेरे पास कितनी होनी चाहिए थी अमाउंट, 1140। ये मेरे पास सिंपल अमाउंट आती 1140। लेकिन जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो हम जो ओरिजिनल हमारे पास फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया होता है, दैट मीन्स हम 1070 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 और फिर हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आती है 114.90। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट करूं तो 1070 पहले ईयर, 1070 दूसरे ईयर, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर आता है। लेकिन जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग मीन्स जो पहले साल के बाद मुझे पास अर्निंग आई थी दैट इज 1070, जो ओरिजिनल अमाउंट था 1000 प्लस 70 जो मैंने एक्स्ट्रा अर्न किया था, इस टोटल के ऊपर मैं और इंटरेस्ट रेट लगा के सेकेंड ईयर पे फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट आ जाता है। दैट मीन्स 1070 के ऊपर 7% इंटरेस्ट लगा के हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 114.90। अगर इस 114.90 में से 1140 को माइनस करें तो जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 4.90। दिस 4.90 इन ईयर 2 इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर अर्निंग ड्यू टू कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग हमें हेल्प करना है एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करने में, प्लस हमारी ओरिजिनल में वैल्यूज फाइंड आउट करने में। क्योंकि मैं ईयर 1 के बाद तो मैंने 1070 किया, क्या जरूरी है मैं ईयर 2 के बाद भी 1070 करूंगी? नहीं, मैं उस 1070 के ऊपर 7% इंटरेस्ट लगा के फिर वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, दैट इज 1144.90 रुपीज। Now this is the concept of simple and compounded interest rate. Let's look at the general future value formula, that is future value is equals to present value 1 plus I power n. अगर ये 1 के लिए है तो that would be present value into 1 plus I power 1. अगर ये 2 के लिए है तो present value 1 plus I power 2. अगर हम जनरल फॉर्मूलाज देखते हैं तो वो तो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई पावर n। लेकिन एक और फॉर्मूला भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू आई एफ, एफ वी आई एफ। दिस एफ वी आई एफ इज, इस एफ वी आई एफ के अंदर अगर आप देखें तो ये जो हमारा आई है एफ, दिस इज कॉल्ड फॉर इन्फ्लेशन फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर। दिस इज योर इंटरेस्ट फैक्टर, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, that is the value today, and this is your future value, this is your future value। ये जो IF हम यूज करते हैं दिस इज योर इंटरेस्ट फैक्टर, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट के साथ साथ नंबर ऑफ पीरियड्स को भी कंसीडर करता है ना। ये फॉर्मूला हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमने टेबल्स यूज करने होते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम टेबल के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी फ्यूचर वैल्यू की या किसी भी अमाउंट की, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। दिस इज वैल्यूएशन यूजिंग टेबल। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है। दिस इज योर 6%, 7%, 8%। नॉर्मली जब आपके पास टेबल होता है, अगर आप लोगों के पास बुक है या अगर आप फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एनयूटी, प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी, इन सब के फॉर्मूलाज लेना चाहते हैं या टेबल्स लेना चाहते हैं तो आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप कोई भी वो फॉर्मूला ले सकते, टेबल्स ले सकते हो। प्लस आप लोगों की कोई भी अगर फाइनेंस की बुक उठाते हो, स्पेशली ब्रिगम की बुक जो मैंने पहले भी सजेस्ट की थी, अगर उस बुक को उठाते हो तो उसके एंड में आपके टेबल्स दिए हुए हैं। अब वो टेबल्स आप लोगों को हेल्प कैसे करते हैं कि उसमें आपके नंबर ऑफ ईयर्स भी लिस्ट डाउन हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स लिस्ट डाउन है।
इधर आपके सारे इंटरेस्ट रेट लिस्ट डाउन होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0% टू अप टू सो मैनी परसेंटेजेस, काफी ज्यादा परसेंटेज के साथ आपके पास वो सारे टेबल्स डिफाइंड होते हैं और आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स भी दिए होते हैं। अब अगर क्योंकि अगर हम अपना क्वेश्चन देखें जिसके अंदर हमने 1000 डिपॉजिट किया था 7% 2 ईयर्स के लिए, हम क्या करेंगे कि इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स देखेंगे और इंटरेस्ट रेट देखेंगे। अब क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स इधर कितने थे, ये 2, और हमारे पास इंटरेस्ट कितना था 7%। अब इस सेकेंड ईयर में 7% के ऊपर अगर हम वैल्यू देखें तो दैट इज 1.145। इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे कि अपने नंबर ऑफ ईयर्स देखेंगे, सेकंड को देखा, और अपना इंटरेस्ट रेट देखेंगे। उन दोनों को अगर हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज जाएं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाए फाइंड आउट होगी, दैट इज 1.145 जो कि गिवन है टेबल के अंदर। अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास 1.145 ये जो वैल्यू इस टेबल के अंदर आई है 1.145, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1000 इंटू 1.145 किया तो मेरे पास जो आंसर आया है दैट इज 1145। अगर आप अपना क्वेश्चन रिकॉल करें तो हमने कितनी वैल्यू फाइंड आउट की थी 1144.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1145। तो हम क्योंकि ड्यू टू राउंडिंग इसका आंसर जो है वो 1145 आता है। दिस इज द वे कि आप लोग टेबल से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सो दो तरीके हैं, एक वो जो कि आप सिंपल फार्मूला से यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू कि इफ यू वांट टू यूज फार्मूला और द टेबल, बट आई वुड प्रेफर एंड आई वुड से यू टू यूज फार्मूला। उससे ये है कि फार्मूला से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बट इफ यू वांट टू यूज टेबल तो दैट इज इजी एज वेल। आप टेबल से भी यूज कर सकते हो। जस्ट यू व्हाट यू नीड टू नो इज योर डाटा। आप अपनी टाइमलाइन बनाएं, अपना डाटा देखें कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, और आपकी कितनी डिपॉजिट अमाउंट है। जो डिपॉजिट अमाउंट है उससे नंबर ऑफ ईयर्स प्लस इंटरेस्ट रेट का जो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करें एंड यू विल हैव द आंसर एग्जैक्टली एज यू कैन फाइंड आउट थ्रू द सिंपल फॉर्मूला। Now let's look at another example, another problem example for the future value. For example, Julie Miller wants to know how large her deposit of rupees 10,000 today will become at a compound interest rate of 10% for the next 5 years. So, अगर 10,000 rupees is deposited today in her account with an interest rate of 10%. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो अमाउंट आती है दैट इज 10,000 रुपीज आप डिपॉजिट, जूली मिलर जो है वो डिपॉजिट करेगी ऑन 10,000 रुपीज विद एन इंटरेस्ट रेट बैंक में, जो कि हमें इंटरेस्ट रेट कितना पे कर रहा है 10%, और फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगर आप ये देखें तो पहला स्टेप हमारा क्या था, टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर देखें तो ये हमारी टाइमलाइन है जिसके अंदर ये 0 1 2 3 4 5 ईयर्स तक बने हुए हैं। 5 ईयर्स तक ये 10% इंटरेस्ट रेट है और हमारे ईयर 0 मतलब आज डिपॉजिट करना है। आज मेरे पास अमाउंट कितनी है 10,000 रुपीज, 10,000 टुडे दैट मीन्स आज, तो मेरे पास आज इतना है और मुझे 5 साल के बाद यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट कि किस तरह होती है। मैं नहीं फाइंड आउट करूंगी, पहले आप फाइंड आउट करें। पहले ये देखें बिफोर लुकिंग एट दिस वीडियो और डिटेल आंसर के मैं किस तरीके से करती हूँ, पहले आप लोग खुद फाइंड आउट करें कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 रुपीज विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सबसे पहले हम डाटा फाइंड आउट करते हैं। हमने डाटा देखा कि हमारी डिपॉजिट अमाउंट टुडे आज क्या है 10,000, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। योर आई इंटरेस्ट रेट इज 10% and n is equals to 5 years. So let's look at this thing कि हमारी वैल्यू कितनी आती है। प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है 10,000 और हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 1 प्लस 0.10, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। अगर आप 10% की बात करते हो तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.10। ये तो आप सबको आना चाहिए, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। जो यहाँ पे 0.10 डालेंगे और इसकी जो पावर है दैट n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स आर 5। The value we will find with the calculator is 16105.10। तो इसको हम किस में मेंशन करेंगे, जिसमें हमारा अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कितने रुपीज 10,000 है, तो आपके रुपीज 10,000 इसी तरीके से रुपीज 16,000
10,105.10 बन जाएगा। आपका 10,000 जो है वो कितनी अमाउंट बन जाएगा, इफ इंटरेस्ट if we compound that interest to 10% for the next 5 years, 10,000 would become 16,105.10. so 10,000 का डिपॉजिट किया जाए आज तो वो कमिंग अप ईयर्स में 5 years में विद इन 10% इंटरेस्ट रेट 16,000 बन जाएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। Now let's calculate it using table। अब टेबल से फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने टेबल में फाइंड आउट किया, वही हमारा तरीका था कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, यहाँ पे देखा जी 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5th ईयर था। 5th ईयर के बाद हमारे पास जो वैल्यू थी, सपोज कि हमारे कितना 10% इंटरेस्ट रेट था, 10% 1 से लेके 10% इंटरेस्ट रेट था हमारे पास। तो 5th ईयर पे 10% इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू आती है हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब वो वैल्यू क्या थी, 1.611। सो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 हमारी ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू थी, 1.611 से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड द आंसर वुड बी 16,105 ऑलमोस्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज याद रखें कि जब भी आप फाइनेंस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर तो था थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड, लेकिन आगे जो है विद थ्योरी के साथ साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग दिस कोर्स, आप इसकी जब भी अपने लेक्चर लेने लगो तो अपने पास पेन पेपर एंड कैलकुलेटर जरूर रखें, क्योंकि हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, मैं साथ साथ सॉल्व करवाऊंगी, आप साथ साथ वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। और अपने और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए फ्यूचर वैल्यू के व्हाट यू विल बी डूइंग कि आप कोई भी फाइनेंस की बुक उठा लो, जैसे मैंने पहले बताया था ब्रिंगम की उठा लो, वेन फॉन की उठा लो, उन सबके एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करते जाए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस और आपको पेपर सॉल्व करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। Now we'll be looking at the present value, as we have already found out how we find out the present value of some future value of some present amount, और किस तरीके से उसको देखा जाता है कि अगर डिपॉजिट किया जाए या इन्वेस्टमेंट की जाए या अगर आपने इंटरेस्ट पे करना हो तो क्या अमाउंट से क्या चीजें आप कंसिडर करते हो to find out the future value. Now let's look at the present value, how we are going to find out the present value. The simplest definition or the simplest way of defining present value is the value today, the worth or the value of money or the funds today. आज उसकी क्या वर्थ बनती है, मैं सिर्फ ये फाइंड आउट कर रही होती हूँ when I talk about present value. तो present value, present के नाम से ही पता चलता है कि present means आज, तो जो भी आज वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ this is your present value. So और कोई तरीके से अगर आप if you want to define it in a very clear way, that would be present value is the current value of a future amount of money. Current value of the future amount of money या series of payments at a given interest rate. कोई भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर फ्यूचर में किसी कोई भी वैल्यू है जो कि फ्यूचर उसकी आज मैं करंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या होगी, दैट्स सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू। नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंटिंग। जैसे कि हमने ये बताया कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग future value, process of going from present to future value is compounding. Similarly, the process of finding the present value is discounting. कि आप future value आपको पता है और future value से आप move करते हो present value की तरफ और आप find करते हो कि future value से present value की तरफ, या find करते हो कि future value की आज present value क्या है, current value क्या है, तो that is the process is called discounting. अगर आप present value का simple formula देखें तो the formula we have is present value is equals to future value into 1 plus I power minus n. यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है ये देखना कि इसकी आपकी जो interest power है that is minus n. Fv is again your this future value as your Fv is your future value, Pv is your present value, this I is your interest rate and this n is your number of years. एक चीज देख लें कि इसकी पावर में माइनस n क्यों आता है। जब हम ये बात करते हैं, if you look at this thing, future value is equals to present value 1 plus I power n. अगर हम इस 1 plus I को उस तरफ ले जाएं तो present value, it implies that present value is equals to future value whole over 1 plus I power n. तो
इस फॉर्मूला को अगर करें, दिस 1 प्लस आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इफ यू फाइंड आउट दिस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 ओवर 1 प्लस आई पावर एन. जब हम इस n की वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्योंकि डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो दैट वुड बी माइनस n. इसीलिए हमारे प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में माइनस n की वैल्यू आती है कि यहाँ पे अगर देखा जाए दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई पावर n. जब हम इसको जो चीज डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर में चीज होती है हमेशा नेगेटिव हो जाती है. दैट्स अ सिंपल मैथमेटिकल रूल. तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई पावर माइनस n. This is the simple formula for your present value. Let's look at a question कि किस तरीके से ये solve out होगा. Now assume that you need rupees 1000 in 2 years. Let's examine the process to determine how much you need to deposit today at a discount rate of 7% compounded annually. अब क्योंकि पहले तो हमने ये देखा था कि अगर 1000 आज डिपॉजिट किया जाए तो फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा. अब ये देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे पता है कि मुझे 2 साल के बाद 1000 रुपीज चाहिए. 2 साल के बाद 1000 रुपीज चाहिए विद एन इंटरेस्ट. एक बैंक जिसके अंदर मैं डिपॉजिट करा सकती हूँ वो मुझे 7% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है. तो जो मैं आज अमाउंट डिपॉजिट कराऊंगी कुछ ऐसी अमाउंट डिपॉजिट कराऊं 7% इंटरेस्ट रेट के साथ, 2 साल के बाद वो मुझे 1000 रुपीज दे दे. दैट मीन्स फ्यूचर में मुझे 1000 रुपीज चाहिए 2 साल बाद. आज जो मुझे अमाउंट डिपॉजिट करनी मुझे नहीं पता मुझे आज क्या अमाउंट डिपॉजिट करनी चाहिए कि मुझे फ्यूचर में 2 साल बाद 1000 रुपीज मिले. इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट्स सपोज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई पावर माइनस n. नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग. Present value. Now this 1000 rupees is your future value. So future value हमें पता है हमारे पास 1000 rupees है. 7% is your interest rate. And कितने number of years है? That is 2. Simple 2 है. आपके question के अंदर लिखा हुआ है कि in 2 years your interest rate is 7%. So present value is equals to future value into 1 plus I power minus n. अब present value, अब इसमें अगर हम formula में values put करें तो 1000 into 1 plus 0.07 power minus 2. अगर हम इसको calculations करें calculator से, the value we will have is 873.4. So present value of 1000 after 2 years is rupees 873.4. That means कि अगर मुझे 2 साल बाद 1000 रुपीज चाहिए तो मुझे आज 873.4 रुपीज डिपॉजिट कराने चाहिए बैंक में. जब मैं 873.4 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी जो कि 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो 2 साल बाद ऑटोमेटिकली दैट 873 वुड बिकम 1000. अब दैट डिपेंड्स कि आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स में 7% इंटरेस्ट रेट है या जितने भी इंटरेस्ट रेट है अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ही आपके, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करो तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. सो दिस इज योर सिंपल फाइंडिंग आउट योर सिंपल प्रेजेंट वैल्यू. नाउ लेट्स लुक एट अ ग्राफ. मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, टाइमलाइन. तो हमने क्वेश्चन कर लिया, स्टिल इफ यू लुक एट द टाइमलाइन और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप यहाँ पे देखें तो क्या है आपके पास, दिस इज ईयर 0, दिस इज ईयर 1, वी हैव ईयर 2. हमें ये पता है कि हमें 2 years के बाद 1000 रुपीज चाहिए. सो दिस 1000 रुपीज इज आफ्टर 2 years, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है. अगर मैं ये देखूं कि मुझे 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो मुझे आज, मैंने क्या बताया था कि जीरो पे हमेशा जब भी हम जीरो की बात कर देंगे दैट इज टुडे, आज. मैं आज प्रेजेंट पे जहां खड़ी हूँ दैट इज जीरो पे आज खड़ी हूँ. तो ये दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू. तो आप 1000 रुपीज की आज वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे विद 7% इंटरेस्ट रेट. दिस इज द वे आपकी टाइमलाइन इस तरीके से बनेगी. दिस इज योर सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन. सो प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट का अगर आप फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला देखें तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई पावर माइनस n. जब हम सेकंड ईयर की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू n, फ्यूचर वैल्यू 2 फॉर द सेकंड ईयर. जैसे कि आपके अगर आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 2 1 प्लस आई पावर माइनस 2. क्योंकि हमने 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर सेकंड ईयर
एंड वैल्यू टुडे। सेकेंड ईयर के लिए हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फ्यूचर की सेकेंड ईयर पे हमें वैल्यू पता है, दैट इज 1000 रुपीज। अगर आप स्लाइड में देखो तो आपको नजर आ रहा होगा, हम फाइंड आउट ये करते हैं कि 1000 इंटू 1.07 पावर -2, तो द आंसर वुड बी 873.44, जो कि आपका सिंपल फॉर्मूला में आंसर, सिंपल फॉर्मूला में पुट करने के बाद कैलकुलेटर से आप यूज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट वुड बी द आंसर। अगर आप जनरल प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला देखें तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर पहले ईयर के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस आई पावर -n -1 हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 2 FV2 इंटू 1 प्लस आई पावर -2, दिस वुड बी द सेकेंड ईयर एंड सिमिलरली एक्सेट्रा इट वुड कंटिन्यू। इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, मुझे 17th ईयर पे एक फ्यूचर वैल्यू पता है कि 17 ईयर बाद मुझे 10,000 रुपीज मिलेंगे और मैं उसके आज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर FV17 1 प्लस आई पावर -17 हो जाएगा। तो दिस इज द केस कि जब भी इसी तरह सिमिलरली वो आगे चलता रहेगा, आपकी मर्जी, आप इसमें सेकंड ईयर लिखो ना लिखो, लेकिन एन की जगह सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है वो लिखना जरूरी है। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई पावर -n। अगर आप इसको वो फॉर्मूला जो कि हम टेबल के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमने फ्यूचर वैल्यू के लिए किया था, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए करें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू PVIN। This PV is your present value, this is your present value, this IF is your interest factor, this is your interest factor। वही इंटरेस्ट फैक्टर है जैसे कि हमने फ्यूचर वैल्यू में फाइंड आउट किया था, जो कि हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। दिस आई एंड दिस एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इयर्स एंड द इंटरेस्ट रेट वी आर गोइंग टू अर्न। अगर हम उसी क्वेश्चन को देखें जो कि हमने कंटिन्यू किया था, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते कि 10,000 रुपीज अगर 2 साल बाद हमें मिल रहा है फ्यूचर में, तो उसको आज कितना डिपॉजिट करना चाहिए विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% और नंबर ऑफ इयर्स कितने, 2 साल बाद 2। तो अगर हम इसमें, अगर आप इसके अंदर देखो तो वही टेबल है, उसी तरह टेबल है, आपके प्रेजेंट वैल्यू का टेबल डिफरेंट होगा, आपके फ्यूचर वैल्यू का टेबल डिफरेंट होगा। सिमिलरली जब हम एन्युटीज इसके ऊपर लर्न करेंगे तो उसमें फ्यूचर वैल्यू एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का टेबल बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हमें, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने थे, 2, इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, तो सेकेंड ईयर पे 7% अगर हम कॉलम और रो को मिलाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 7% और नंबर ऑफ इयर्स 2 पे, दैट इज 0.873। तो 0.873 इज द वैल्यू जो कि आपको आपकी वैल्यू है इंटरेस्ट फैक्टर की। दैट मीन्स हमें IF की वैल्यू कितनी मिली है, 0.873। अब इस 0.873 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 873 रुपीज। So this is your value of present value। जो हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर था 0.873, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो आंसर वी हैव इज 873 रुपीज। तो that was the same answer as we got from using a simple formula and the same answer from using a table. Now let's look at another question, that is Julie Miller wants to know how large of a deposit to make so that the money will grow to rupees 10,000 in 5 years at a discount rate of 10%. अब वही बात है कि Julie Miller wants to know how large a deposit should be made. That means कि अब Julie के पास को ये नहीं पता कि उसको 5 साल बाद, उसको ये पता है कि 5 साल के बाद उसको 10,000 रुपीज मिलेगा, 10,000 रुपीज आफ्टर 5 years मिलना है। अगर उसके पास एक बैंक है जिसमें वो डिपॉजिट करा सके और वो बैंक जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है दैट इज 10%। अगर हम एक बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराएं जो कि 10% इंटरेस्ट रेट 5 years तक दे, तो हमारी अमाउंट 10,000 बननी चाहिए। अब हमें ये पता है कि दिस इज, इफ यू लुक एट दिस रुपीज 10,000, तो ये रुपीज 10,000 क्या है, योर फ्यूचर वैल्यू। 5 साल बाद आपको 10,000 रुपीज चाहिए, आपको पता है कितने साल बाद, 5 साल बाद, दिस इज योर एन। और आपको कितना, आई इज योर 10%, कि अगर आप किसी ऐसे बैंक में अमाउंट जमा कराओ जो कि आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 years और वो आपके अमाउंट को 10,000 बना देगा, तो आप वहां पे डिपॉजिट करवा सकते हो। अब नाउ स्टेप 1, क्या स्टेप 1 था, हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट स्टेप 1 इज मेकिंग अ टाइमलाइन। अगर इफ यू लुक एट दिस टाइमलाइन,
This is your step 1. If you look at this timeline, तो आपके कितना इंटरेस्ट रेट है? दिस इज योर 10% इंटरेस्ट रेट. कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 5 ईयर्स. और क्या 5 साल बाद आपको कितनी अमाउंट मिलने वाली है? 10,000 रुपीज. तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने आज वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स आपको आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, सिंपल प्रॉब्लम सोल्यूशन अगर देखा जाए, तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन जनरल फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टेबल दोनों की देख लेते हैं. नाउ लेट्स लुक एट अ प्रॉब्लम सोल्यूशन. वी नो द फ्यूचर वैल्यू वी हैव इज 10,000 रुपीज. द इंटरेस्ट रेट वी आर गोइंग टू पे इज और वी आर गोइंग टू अर्न इज 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज 5. सो प्रेजेंट वैल्यू इसकी किस तरीके से फाइंड आउट होगी? 10,000 into 1 plus 0.1 that is 10%. पावर में आपकी कितना आएगा? पावर में आएगा -5. If you find out through calculator, the answer would be 6209.21. The answer would be 6209.21 rupees. Don't forget to write the unit as I have told you before. So if we find out the present value of 10,000 rupees that we'll be getting after 5 years at an interest rate of 10%, then the value we'll get today is 6,209.21. So 6,209.21 is the value today of 10,000 rupees after 5 years. Now let's look at the table. अगर टेबल के तरीके से किया जाए तो किस तरीके से हमारा टेबल था? सिमिलर वे है. ईयर 1 से लेके अप टू 1% से लेके अप टू हमारे पास 10% तक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट इज 10%. और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 ईयर्स तक. तो ईयर 5 के ऊपर 10% अगर आप फाइंड आउट 10% पे वैल्यू जाके फाइंड आउट करो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.621. दिस इज द वैल्यू इन द टेबल. आप टेबल अगर चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो. दिस 0.621 इज द वैल्यू जो कि आपकी इंटरेस्ट फैक्टर की वैल्यू है. सो टेबल पे जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज 0.621, जो कि आप लोग टेबल से भी चेक भी कर सकते हो. तो फिर फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. इसी तरीके से अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें और हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर ऑलरेडी है दैट इज 0.621, तो 0.621 को अगर डाला जाए द आंसर विल गेट इज 6210. राउंड ऑफ करके ड्यू टू राउंडिंग जो है, ड्यू टू राउंडिंग आपकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला से वैल्यू चेक करो तो दैट वाज 6209.21 और यहाँ पे आपका क्या आंसर है 6210, जो कि स्लाइड से डिफरेंस है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ राउंडिंग. सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टुडे. That was the simple problem solution. Now that was all about today's lecture. What we studied was the present value, focus on the present value and the future value. Now let's look at the summary. The time value of money. We studied what is the worth or the value of a money today or the value of a money in future. That means the worth or value of money at different points in time. चाहे आज की करो, फ्यूचर में करो, किसी और 4 साल बाद, 10 साल बाद, या किसी भी फ्यूचर ईयर में करो, या किसी फ्यूचर की वैल्यू आज फाइंड आउट करो, तो दैट इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. देन वी फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट रेट. सिंपल इंटरेस्ट रेट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कि आपकी सिंपल वैल्यूज है. आपकी 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. आपको पास फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए, तो आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अपने सिंपल इंटरेस्ट रेट से वैल्यूज. 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. इफ यू लुक एट फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि यू आर फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी टुडे. आज जो वर्थ है मनी की, उस वर्थ या फंड्स की, उनकी वर्थ आप फ्यूचर में फाइंड आउट कर रहे होते हैं. सो द वैल्यू और वर्थ ऑफ मनी एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, और द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. स्टेप्स डिफरेंट हमने फॉलो किए थे कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i पावर n. और अगर हम स्टेप्स फॉलो करें कि लेट्स सपोज अगर मैंने 1,000 रुपीज आज डिपॉजिट करवाया है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि 2 साल बाद विद 7% इंटरेस्ट रेट उसकी वैल्यू क्या होगी,
तो हम उसकी सबसे फर्स्ट स्टेप करते हैं. स्टेप 1 इज योर टाइम लाइन, जो कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टाइम लाइन, देन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू. उस फ्यूचर वैल्यू के अंदर आपने अपना डाटा कलेक्ट किया कि जी मेरी प्रेजेंट वैल्यू इतनी थी, इंटरेस्ट रेट इतना था, नंबर ऑफ ईयर्स इतने थे. उस फॉर्मूला में ऐड करें तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है. सिमिलरली हम उसको टेबल से भी यूज कर सकते हैं. टेबल के अंदर हमारे पास परसेंटेज इंटरेस्ट दिए होते हैं ऑन द रोज, और कॉलम पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं. जिस नंबर ऑफ ईयर्स, लेट्स सपोज 2 ईयर्स थे, 7% इंटरेस्ट था, उस दोनों कॉलम और रो को मिलाएं तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, दैट इज योर इंटरेस्ट फैक्टर. उस इंटरेस्ट फैक्टर को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ जाएगा. सो आप दोनों तरीके टेबल से भी और सिंपल फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं. देन वाई वी यूज कंपाउंडिंग, हमने ये चीज देखी थी कि अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स, 1 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स लें और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लें, लेट्स सपोज 7% इंटरेस्ट लें और 10% इंटरेस्ट लें और उसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंडिंग को कंपेयर करें, तो हम ये देखेंगे कि कंपाउंडिंग से हमारी वैल्यू ज्यादा आती है. प्लस वो ये बताता है कि अगर 1000 मैंने डिपॉजिट किया, 7% इंटरेस्ट रेट था, दैट मीन्स 1070 एक साल बाद आप करोगे. उसी 1070 के ऊपर दोबारा 7% लगे तो द अमाउंट वुड बिकम 1144.9. वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो जाती है. तो कंपाउंडिंग आपकी वैल्यू को जरा रियल टर्म्स में ओरिजिनल वैल्यू प्लस जरा ज्यादा वैल्यू बताता है. देन हमने ये देखा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है. प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू और द वर्थ ऑफ मनी टुडे. जब भी मैं आज की बात करती हूँ, टुडे, प्रेजेंट और द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, किसी भी फ्यूचर अमाउंट की आज क्या वैल्यू है, करंट या प्रेजेंट वैल्यू, तो दिस इज what we call present value, and the process of finding the present value is called discounting. Present value में भी हमने यही किया कि let's suppose अगर 1000 इन्वेस्ट किया गया, 1000 मुझे पता है कि 2 साल बाद मुझे 1000 रुपीज चाहिए, और उसकी मैं अगर आज वर्थ फाइंड आउट करना चाहूँ कि आज किसी भी बैंक में डिपॉजिट करती हूँ जो कि मुझे 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो 1000 2 साल बाद मुझे चाहिए, तो आज मुझे कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए. उसके लिए भी हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, दैट वाज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + i पावर -n. हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू डाल के सिंपल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली इसके भी सेम स्टेप्स थे. स्टेप 1 इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइमलाइन में आए. स्टेप 2 इज उसमें डाटा फॉर्मूला लिखें, और स्टेप 3 इज वैल्यूज डाल के आंसर फाइंड आउट कर लें. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 3 थिंग्स. The first thing is making a timeline and following the steps. Second thing is you must have a calculator, you must have a pen, you must have a paper, और आप साथ साथ practice करें. This is very important. And the last step, last point is you must write down the unit. आप डॉलर यूज कर रहे हो, रुपीज यूज कर रहे हो, जो भी यूनिट है वो लिखना जरूरी है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं. प्लस ये आपकी वैल्यू को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है कि आप क्या ले रहे हो. आज 1000, what is 1000? If when I say 1000 rupees, that means मुझे आज 1000 rupees मिल रहे हैं. So future value is finding the value in future, and the present value is finding the value today. So this was all about our today's lecture. Then in the next lecture we are going to study the types of annuity and the types of annuity, that will be future value and the present value, and maybe we'll be touching uneven cash flow for finding present value and the future value. Thank you. Allah Hafiz.